Dear children, today we are going to solve exercise 2.4, chapter quadratic equation, standard 10. Now children, here I have written all the question. First question is, compare the given quadratic equations. See what I have written. Compare the given quadratic equations to the general form. Now first I will write here what is the general form. General form of a quadratic equation. Children, it is ax square plus bx plus c equals to 0. Children, here we have got three terms. Here it is x square term where the highest power of the variable is 2. Hence it is a quadratic. So we write here highest power of variable is known as degree. Is known as what? Degree. If degree is 2, then it is quadratic equation. Then it is what? Quadratic equation. Since this value, this power is 2, highest power is 2, hence it is a quadratic equation. Now children, here in the first question they have given you, this is the question. X square minus 7x plus 5 equals to 0. We have to compare it with ax square plus bx plus c equals to 0. A is 1, b is minus 7 and c is what? 5. This is what they are asking you to do. Means coefficient. What I am using the word? Coefficient of x square is a. X square coefficient here nothing is written, means it is what? 1. Coefficient of x nothing is written, then it will be 1. But here it is 7, that too minus 7. So the b value is what? Minus 7. c value is what? 5. बहुत आसान है बच्चों. x स्क्वायर के बगल में a है, यहाँ x के बगल में क्या है? 1. कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे. b x के बगल में क्या है? b. वैसे x के बगल में क्या है? माइनस 7. तो माइनस 7 ये b की वैल्यू हम मानेंगे. c की जगह पर क्या है? 5. तो c की वैल्यू हम क्या मान के लेंगे? 5. सो x के बगल में जो भी है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट. क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट. So coefficient of x is what? Minus 7. Coefficient of x square is what? 1. Now children, this is the first condition. Let's go for the second condition. (2m square equals to 5m minus 5). Now 2m square minus 5m plus 5 equals to 0. Take all the values to this side. Take all the values to this side. 5m comes here, becomes minus 5. Minus 5 comes here, becomes plus 5. Now compare it with ax square plus bx plus c equals to 0. Compare it. So, and you write at the place of, now x square coefficient is a, here n square coefficient is what? 2.
So you write a as 2. Only x is the variable here, and here n is the variable. So at the place of b you write -5. At the place of c you write 5. Correct? Now children, we will be moving for the third question. Third question they have written as y square equals to 7y. This one, this is the third question I am doing. Y square equals to 7y. If y square minus 7y comes out as what? 0. Now note here, we have got y square term, we have got y term, but we don't have the constant. So I will compare it with the ay square, and while writing in the standard form I will write y square minus 7y plus 0 equals to 0. Here if I compare it with the ax square plus bx plus c equals to 0, this I have written in the standard form. Here x square coefficient is a, so y square coefficient is 1. b वैल्यू, b की जगह y के बगल में क्या है बच्चों? -7. तो वैसे यहाँ पे x के b था तो मैंने लिखा b की वैल्यू -7. देखो कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं था ना, तो इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं कि c वैल्यू इज 0. तो a is 1, b is -7 and c is what? 0. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को खत्म किया. आप एक फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो. अब हम आगे बढ़ेंगे. अगला जो क्वेश्चन है उसे हमें सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय बच्चों हमें फॉर्मूले मेथड को फॉलो करना है. व्हाट द राइटिंग हियर? सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड. देखो फॉर्मूला मेथड क्या रहता है पहले हम उसे समझते हैं. ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल्स टू 0. ठीक है ना? दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों जो रूट्स है वो हम एक फॉर्मूले की मदद से पता करेंगे. -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये एक फॉर्मूला है बच्चों. हमें कोई भी रूट जब पता करना होगा, और अगर तुम्हें एग्जाम में कह रहे हैं कि यूज सॉल्व इट बाय फॉर्मूला मेथड, तो हमें इसी फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा. तो ये हमारा जो फॉर्मूला है बच्चों, ये क्या है? बता रहे हैं कि x का मतलब क्या है? रूट. x की जो वैल्यू है वो -b प्लस या माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. मतलब ये हुआ कि x के हमें दो आंसर मिलते हैं. हमें पता है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैविंग 2 रूट्स. तो मैं यहाँ पे एक बार यहाँ पे प्लस लिखूंगा और एक बार मैं ऐसा भी लिखूंगा माइनस. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है बच्चों, और एक बात ध्यान दो, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में माइनस बी देखो सेम है. माइनस बी में से कोई नंबर प्लस कर रहे हो और उसी माइनस बी में से कोई नंबर माइनस कर रहे हो. तो अगर मैं इसको अल्फा कह दूं और इसको मैं बीटा बोलूं, तो अल्फा जो रहेगा वो बड़ा रहेगा किससे? बीटा से. ठीक है ना? अल्फा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा. ये एक जनरल नॉलेज हमारे लिए. तो अब हम इस फॉर्मूले की मदद से बच्चों अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. तो चलो इस फॉर्मूले को मैं यही लिखे रहने देता हूं और पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं. देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारा पहला क्वेश्चन. क्या कह रहे हैं बच्चों पहले क्वेश्चन में?
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसे बच्चों हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। ए की जगह पर बच्चों कुछ नहीं है तो 1 है, x के बगल में देखो b है, इसका मतलब b की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है बोलो 6, और c की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे बोलो 5। ठीक है, अब फॉर्मूला जो है हमारा वो हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आ गई बच्चों वैल्यू, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बच्चों हम लोग हर एक वैल्यू जो हमें अभी मिली है हम उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूं x इक्वल्स टू माइनस बी मतलब हुआ बच्चों -6 प्लस या माइनस एक साथ, अब अंडर रूट बी स्क्वायर पहले तो आपको फॉर्मूले में वैल्यू खाली पुट करनी है, -4, ए की वैल्यू कितनी है बोलो 1 और सी की वैल्यू कितनी है बोलो 5, डिवाइडेड बाय 2a, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1। x इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 26, मैंने ऐसे ही लिखा बच्चों, प्लस माइनस मैंने यहां लिख दिया, 6 का स्क्वायर था मैंने 36 लिख दिया, 4 5 जा 20 हो गया वो भी लिख दिया, डिवाइडेड बाय मैंने 2 लिख दिया। अब बच्चों आगे देखो, x इक्वल्स टू -6 प्लस या माइनस 36 माइनस 20 की वैल्यू आ गई 16 अपॉन 2, x इक्वल्स टू -6 प्लस या माइनस बच्चों वो ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट 16 बनेगा 4 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे देखो बच्चों प्लस माइनस की वजह से हमें 2 स्टेप्स ले ली है, -6 प्लस 4 एक बार लिखेंगे और एक बार हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू -6 माइनस 4। ठीक, ये देखो 2 स्टेप्स कैसे आ गई हम उससे समझते हैं। यहां पे प्लस और माइनस है तो एक बार मैंने प्लस लिखा और एक बार मैंने क्या लिखा माइनस, बहुत सिंपल सी बात। अब इसे सॉल्व जब तुम करोगे तो -6 और ये 2 मिला के हो गया -2 अपॉन 2, कैंसिल किया -1, x का आंसर आ गया -1। वैसे ही x की वैल्यू -10 अपॉन 2, इसे सॉल्व करोगे -10 आया, कैंसिल किया -5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों -5। तो हमें 2 आंसर मिल गए हैं। ये कौन से 2 आंसर है बताओ जरा मुझे, x इक्वल्स टू -1 या फिर x इक्वल्स टू -5। खाली इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में अगर तुमसे कह रहे हैं फॉर्मूला मेथड तो तुम्हें फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना है। हमने बच्चों इसके पहले 2 मेथड ऑलरेडी सीखे थे। एक था जिसमें हम फैक्टराइज करते थे और उसके बाद दूसरा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था 2.3 में। तो इस तरीके से आज हम 2.4 में अपना एक नया मेथड पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला मेथड। अगर बच्चों इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे सब्सक्राइब कर लो, उससे पहले एक बार व्यू कर लो। अगर आप वीडियोस के लिए न्यू हो तो भी आप पहले की वीडियोस को एक बार सब्सक्राइब करो, उसे एक बार देखो और जो भी आपके फ्रेंड्स हो उनके साथ आप इसको शेयर करो। इस नॉलेज को हर स्टूडेंट तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। हर स्टूडेंट की पढ़ाई में हम एक सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो बच्चों आपको इसके पहले के वीडियोस आप अच्छे से रिफर करो, पढ़ो उसे और उसके बाद इस वीडियो को आप देखो। जब भी आप वीडियो लिंक पे जाके GS, ये ऊपर वाला नाम डाल दोगे, GS क्लासेस मुंबई,
GS क्लासेस मुंबई YouTube पर आप जैसे ही डालोगे सारे वीडियोस पहले के भी आपको मिलने लगेंगे। तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हम लोग। बच्चों अभी तक हमने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें हमारा आंसर भी आ गया हमारे पास -1 एंड -5 का। यहाँ लिखते चलता हूँ आंसर -1 एंड -5 का। अब बच्चों हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन क्या है जरा देखो तो, x² - 3x - 2 = 0। ये है बच्चों सेकंड क्वेश्चन। हमें कह रहे हैं सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड। तो हम क्या करेंगे, ax² bx + c = 0 से इसे कंपेयर करेंगे। a की जगह पर 1, b की जगह पर -3 और c की जगह पर -2 लिख देंगे। a की जगह पर 1, b की जगह पर -3 और c की जगह पर -2। अब बच्चों हमें पता है तो हम लिखेंगे यहाँ पे x = फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x = -b ± √b² - 4ac/2a। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, बार बार लिखेंगे तो एकदम माइंड में बैठ जाएगा आपके। -b तो बोलना ही है, प्लस माइनस बोल के ये एक पार्ट है जैसे याद करना, b² - 4ac, b² - 4ac/2a। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। -b है, देखो -3 बना है ना, क्योंकि ये माइनस तो फॉर्मूले से आया, एक माइनस फॉर्मूले से आ गया और एक b की वैल्यू क्या थी -3। फिर ये लिखो तुम प्लस एंड माइनस, फिर यहाँ पे चलो b² कितना है बोलो, -3 का स्क्वायर, 4 a की जगह पर कितना है 1 और c की जगह पर कितना है बोलो -2 डिवाइडेड बाई 2a। a कितना है बच्चों 1। अब हम x = माइनस एंड माइनस +3 लिखेंगे, प्लस माइनस √ -3 का स्क्वायर करोगे बच्चों 9 आएगा, -4 2 जा 8, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा 8 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। x = 3 प्लस और माइनस √9 एंड 8 17 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। बच्चों एक ऐसा नंबर है जिसे हम रूट से बाहर इमीडिएट नहीं ले पाते, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 17 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, तो आप इसे ऐसे ही रहने तो नो प्रॉब्लम। आपका आंसर देखो क्या हुआ, x = 3 प्लस √17/2 और x = 3 माइनस √17/2। तो यही रहा आपका फाइनल आंसर। एक्चुअल में बच्चों ये फॉर्मूला मेथड जो डिस्कवर किया गया वो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए हम यूज करते हैं, जहां पर आपको कोई रियल नंबर्स, आपको सिंपल नंबर्स नहीं मिल पाते हैं, आपको रूट वाले नंबर्स मिलते हैं। तो ऐसे रूट वाले नंबर्स के लिए हमें, जो इसके पहले हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा या मेनली फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा, वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए ये मेथड हम यूज करते हैं जो यूनिवर्सल है, जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया, ये आंसर भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये आंसर रहा 3 प्लस माइनस √17/2, ये आ गया इसका आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चों। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है हम उसे ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 3m² प्लस 2m माइनस 7 = 0। बच्चों एक काम ये करना, अगर अभी तक के क्वेश्चंस की मदद से तुम्हें मेथड समझ में आ गया है तो वीडियो को आप पॉज कर दो, रोक दो, बंद कर दो
और बाकी के क्वेश्चन अपने ओन से आप ट्राई करो। अगर सॉल्व करते हुए कोई स्टेप में डिफिकल्टी आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, तब जाकर आप इसे फिर से व्यू करो, या अपनी वर्किंग को आपको क्रॉस चेक करना है, तब आप फिर से इस वीडियो को देखो। क्योंकि मैथमेटिक्स बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो जब हम खुद करेंगे तो हमारा ग्रिप आएगा सब्जेक्ट पे। तो टीचर्स ने किया है वहां तक ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम्हें अब बाकी के क्वेश्चंस कहीं भी रिफर मत करो, ये वीडियो भी मत देखो, सीधा क्वेश्चन लिखो, फॉर्मूला समझ में आ गया है, अपने मन से सॉल्व करना चालू करो। कोई डाउट, कोई क्वेरी आ रहा है अपने मन में, आप फिर ये वीडियो देखो, फिर भी क्लियर नहीं होगा तो आप मुझसे फोन पे बात भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके खुद से बाकी क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, उसके बाद फिर रिटर्न आना, तब मैं यहां तक सॉल्व करके रख देता हूं। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं बच्चों। इसके आगे am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0। मैं m नहीं, मैं x को ही एक वेरिएबल मान के यूज करूंगा, m की जरूरत नहीं है। a की जगह पे 3 आया, b की जगह पे 2 आया और c की जगह पर -7 आया। a की जगह पर 3 आया, b की जगह पर 2 आया और c की जगह पर -7 आया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में x की जगह पर आप लिखो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट। बच्चों अब हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू कितनी हुई 2, प्लस माइनस हुआ, b की जगह पर क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 3 और c की जगह पर -7। 2a और a की जगह पर क्या लिखेंगे 3। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया 84। मैंने कैसे किया बच्चों, 2 का स्क्वायर लिखा मैंने 4, a और c की वैल्यू पुट की थी, 4 3 जा 12 हुआ और 12 7 जा 84 माइनस एंड माइनस प्लस, तो टोटल डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6। तो अब बच्चों इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे तो x की जगह पे -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 84 और 4 हो गया 88 डिवाइडेड बाय ये है 6। अभी बच्चों 88 को देखो मैं x इक्वल्स टू कुछ दूसरा नहीं, लेकिन मैं इतना तो कम से कम लिख सकता हूं 22 इंटू 4। ठीक है, 22 इंटू 4। तो 22 इंटू 4 लिखने से फायदा ये होगा कि ये जो 4 है वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई -2 प्लस माइनस ऐसे ही रहने दो, ये 4 जो बाहर आएगा तो 2 बनेगा, अंडर रूट 22 ऐसे ही रहने दो, डिवाइडेड बाय 6 है। अब बच्चों को यहां से अगर 2 कॉमन ले लूं तो 2 कॉमन लेने का मतलब हुआ मेरे पास बचेगा यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 और ये अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। ध्यान से देखो मैंने क्या लिख दिया है, क्या किया है मैंने बच्चों यहाँ से 2 को क्या किया, कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो पीछे क्या रह गया -1, प्लस माइनस तो ऐसे ही है, ये 2 चला गया तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। अब ये 2 कॉमन लेने का मुझे फायदा ये होगा कि मैं ये 2 को इसके साथ कैंसिल कर सकता हूँ। याद रखो जब पूरे ब्रैकेट को कॉमन नंबर है तभी तुम कैंसिल कर सकते थे। यहाँ पर कई बच्चे गलती करते हैं, वो यहाँ से 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 करते हैं। तो क्या करेंगे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, वो गलत हो जाएगा, तब टीचर पूरा क्रॉस करेगा, ध्यान रखना।
वो यहाँ बच्चा यहाँ क्रॉस करेगा तो टीचर पूरा क्रॉस करेगा। आगे देखो, x इक्वल्स टू -1 प्लस √22/3 और x इक्वल्स टू -1 माइनस √22/3। तो बच्चों ये हमारा अगला आंसर रहा, जो क्या है देखो, -1 प्लस -√22/3। ये फॉर्मूला मेथड देखो, आप देख सकते हो कि ये सारे नंबर्स हम फैक्टराइजेशन में फाइंड आउट कर नहीं पाते थे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं कर पा रहा है, जब स्क्वायरिंग मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हमारे लिए बहुत आसान होता है कि हम फार्मूला मेथड से उसको सॉल्व कर लें। कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का अगर आप कभी फॉर्मूला ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो फॉर्मूला मेथड आप लगा लो, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम में लेकिन पेपर सॉल्व करते वक्त जरूर ध्यान रखना, तुमसे जो मेथड कह रहे हैं वही मेथड तुम्हें यूज करना है। जब फैक्टराइजेशन मेथड से पूछेंगे तो तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, खाली क्रॉस चेक करना है कोई आंसर तो उसको फॉर्मूला मेथड से अपने खुद के लिए क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अच्छा, अब हम बच्चों फोर्थ क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। 5m² - 4m - 2 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों देखो, इसको मैं फिर से कंपेयर करूंगा। ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। a की जगह पे 5, b की जगह पे 4 और c की जगह पे -2 है ना। ये हमने कंपेयर किया है बच्चों। क्या किया है? कंपेयर किया है। जब हमने इसे कंपेयर किया बच्चों, a की जगह पर 5 आया, b की जगह पर -4 आया और c की जगह पर -2 आ गया। तो ये जो फॉर्मूला मेथड है, हम अपना फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर्मूला हुआ x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू आ गई -(-4) प्लस माइनस b² -4² -4a and c 2 into 5 माइनस एंड माइनस 4 बना प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 4 5 जा 20 और 22 जा 40 और ये हो गया 40। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, माइनस एंड माइनस प्लस बन गया, प्लस माइनस ऑलरेडी है, -4 का स्क्वायर आया 16, 4 5 जा 20 और 22 जा 40, तो माइनस माइनस का प्लस 40। अब बच्चों यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ, 2 5 जा है इसके लिए, ये डिनोमिनेटर में 10 बन गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। x की वैल्यू देखो बच्चों, ये है हमारे पास 4 प्लस माइनस √16 और 40, ये बनेगा 56 डिवाइडेड बाई 10। तो अब देखो 56 को हम कोई ऐसा नंबर है, यस 14 4 जा है ना, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर बनेगा आपका। लेकिन अगर हम कॉमन लेते हैं तो भी 14 4 जा 56 होता है, अपॉन 10 लिया। x की वैल्यू 4 प्लस माइनस, देखो ये 4 बाहर आ गया तो 2 बना, 14 अपॉन 10। अब बच्चों मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ और कॉमन लेने की वजह से देखो जब मैंने कॉमन ले लिया तो ये 4 क्या रह गया 2, यहाँ से 2 आ गया बाहर। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे मतलब इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे, आपको रिवर्स ये सारी बातें मिल जाएंगी। तो 2 5 जा 10 हुआ बच्चों, x की वैल्यू आ गई 2 प्लस 14/5 और x इक्वल्स टू 2 माइनस 14/5। तो चलो हम इस आंसर को भी यहाँ लिख लेते हैं। ये आंसर हुआ
2 प्लस माइनस अंडर रूट 14/5। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि 5th क्वेश्चन होगा। और इस 5th क्वेश्चन में भी हमें फॉर्मूला मेथड ही यूज करना है। इसमें सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से हैं। तो 5th क्वेश्चन यहां मैं लिख लेता हूं बच्चों, y स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल्स टू क्या है 2। ठीक है, अब एक बात पे तुम ध्यान दो, ये 1/3 जो नंबर है वो ऑपरेट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है, तो इसलिए हम हमेशा डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर है तो उसको हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को सबसे पहले मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं तो ये बनेगा 3y स्क्वायर, ये 3 इंटू 1/3y और ये 3 2 जा 6, 3 कैंसिल हुआ बच्चों। ये बन गया 3y स्क्वायर, ये बन गया y, ये है 6। 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये 6 जो है वो इस तरफ ले ले, ये माइनस 6 हो गया। अब इसे मैं कंपेयर करूंगा, ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू माइनस 6। देखो एक्स स्क्वायर के बाजू में a है, यहाँ पे 3 है, हमने 3 लिखा। वैसे यहाँ पे b के जगह पे यहाँ पे 1 है और c की जगह पे माइनस 6। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके वो नंबर्स को लिख रहे हैं। अब हम अपना फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला हुआ x इक्वल्स टू, यहाँ पे तुम लिखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन व्हाट 2a। अब बच्चों x की वैल्यू जो बन रही है माइनस बी का मतलब होगा -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है तुम्हारे पास 1 और 4, a कितना है 3, c कितना है -6 और उसके बाद 2a -1 प्लस माइनस अंडर रूट, -1 का आप स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। उसके बाद बच्चों माइनस एंड माइनस ये प्लस बनेगा, 4 3 जा 12 एंड 12 6 जा 17 से 2 और ये डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 से। अब बच्चों एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसे हम बाहर नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 73। तो x की वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट 73/6, x की वैल्यू -1 अंडर रूट 73/6। ये हमारा आंसर हुआ बच्चों। तो इस आंसर को भी हम यहाँ लिख लेते हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 73/6। ठीक है, अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, that is 6th question of the exercise 2.4। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चों 2.4। दिस इज द एंटायर फुल एक्सरसाइज 2.4। तो ये 6th क्वेश्चन में यहां लिख देता हूं बच्चों। 6th क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसे आप कंपेयर करोगे ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। a की वैल्यू 5y, b की वैल्यू 13 है और c की वैल्यू क्या है 8। हम सीधे सीधे कंपेयर कर रहे हैं कोएफिशिएंट्स को। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला अब तक आपको बाय हार्ट हो गया होगा। फॉर्मूला है हमारे पास x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बच्चों ये जो x है -b की जगह पर 13 है तो मैं लिख रहा हूं -13 प्लस माइनस अंडर रूट
b का मतलब हुआ बच्चों 13 का स्क्वायर माइनस 4, ऐसे ही लिखो, a की जगह पर 5 है और c की जगह पर 8 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। x की वैल्यू -13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर करोगे 169 आएगा बच्चों, माइनस 4 5 जा 20 एंड 20 में 8 मल्टीप्लाई करो 160। अब बच्चों डिवाइडेड बाई 10 कर लो, यहाँ पे 2 5 जा 10 हो गया। ये सारी कैलकुलेशन है। x इक्वल्स टू -13 प्लस माइनस अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा, 169 माइनस 160, ये आना चाहिए यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 10। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई -13 प्लस माइनस, ये नंबर स्क्वायर नंबर है तो ये बनेगा 3/10। x इक्वल्स टू -13 प्लस 3/10, x इक्वल्स टू -13 माइनस 3/10। x की वैल्यू बन गई बच्चों -10/10 एंड x की वैल्यू हो गई -16/10। सो 2 8 जा 2 5 जा x की वैल्यू हो गई -8/5। तो इस तरह से बच्चों ये हमें आंसर मिला। x की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर भी, x इज -1 और x इज -8/5। ये दोनों आंसर x के रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब इसके आगे की आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। बाय दैट टाइम स्टे होम, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।